ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خودکش بمبار نے گاڑی سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی۔ دھماکے میں نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ ظفر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر، بتائے گا کب یہ اطلاعات موصول ہوئیں اور کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، آئی ایس پی آر کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس میں خودکش بمبار نے گاڑی سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی اور اس دھماکے میں نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے ظفر ہاشمی، بہت شکریہ آپ کا۔ ظفر ہاشمی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خودکش بمبار نے گاڑی سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی ہے۔ دھماکے میں نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید شہید ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا۔ خودکش بمبار نے گاڑی سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی۔ دھماکے میں نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید شہید ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، اور جبکہ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دھماکے میں نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید شہید ہوئے ہیں۔ خودکش بمبار نے گاڑی کو سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دیا تھا۔ ڈی آئی خان میں یہ واقعہ پیش آیا، سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ بجلی صارفین پر 967 ارب کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ صارفین پر 967 ارب روپے کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کی درخواستیں نیپرا کو موصول ہو گئی ہیں۔ درخواستیں آئندہ مالی سال کے لیے 6 بجلی تقسیم کار کمپنیز نے جمع کروائی ہیں۔ نیپرا کی جانب سے بجلی تقسیم کار کمپنیز کی درخواستوں پر سماعت 2 اپریل کو ہوگی۔ تو بجلی صارفین پر 967 ارب کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے، اور یہ درخواستیں نیپرا کو بھی موصول ہو چکی ہیں۔ درخواستیں آئندہ مالی سال کے لیے 6 بجلی تقسیم کار کمپنیز نے جمع کروائی ہیں۔ ادھر شیخوپورہ پولیس کا انوکھا کارنامہ، مردہ خاتون پر مقدمہ درج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مردہ خاتون پر فراڈ کا مقدمہ درج کرنے کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت کا مردہ خاتون پر مقدمے کے اندراج پر حیرت کا اظہار۔ شیخوپورہ کو ڈی پی او نے 13 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت کی جانب سے شیخوپورہ پولیس کی جانب سے انوکھا کارنامہ پیش ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندہ اشفاق احمد سے۔ جی اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں آج ایک انوکھے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مردہ خاتون کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس پر عدالت نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے اور 3 اپریل کو ڈی پی او شیخوپورہ کو طلب کر لیا ہے۔ اس وقت درخواست گزار کے وکیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، مزید کیا یہ سامنے آیا تھا؟ 2023 میں سکینہ بی بی نامی عورت ہے جو فوت ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کی پراپرٹی تھی جس کو ہتھیانے کے لیے یہ پولیس والوں نے بی ڈویژن شیخوپورہ مقدمہ نمبر 155/2024 یہ دائر کر دیا ہے اس کے خلاف فراڈ کا، اور اس کے بچوں کے خلاف جن کی عمریں 10 سال اور 12 سال ہے، جس کے اخراج کے لیے ہم نے کواشمنٹ کی ریٹ فائل کی ہے لاہور ہائی کورٹ بلاؤ۔ جی بالکل، نہ صرف سکینہ بی بی بلکہ اس کے 2 جو کم سن بچے ہیں، ایک 10 سال کا ہے اور ایک غالباً 12 سال کا ہے، ان کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ تو اب لاہور ہائی کورٹ نے 3 اپریل کے لیے ڈی پی او کو نوٹسز جاری کر کے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ جی آگے بڑھتے کوئی بات کریں گے موسم کی۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقام ناران میں گلیشیئر نے تباہی مچا دی ہے۔ ناران جھیل روڈ پر متعدد ہوٹلز گلیشیئر کے نیچے دب گئے ہیں۔ گلیشیئر پھٹنے سے 20 سے زائد مکانات، ہوٹل اور کچے گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ برف باری کے باعث شاہراہ کاغان مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔
उधर आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में भी मौसम सर्द हो गया है। जबकि सयाहती मकामात पीर चनासी, पीर हसीमार, गंगा चोटी, वादी लीपा और बालाई नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल। जी मोहम्मद इकबाल, आगाह कीजिएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बुलंदोबाला पहाड़ों पर बर्फबारी का जो सिलसिला है ये दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। दारुल हुकूम मुजफ्फराबाद और गिरदनवा की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त हल्की बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चलने की वजह से मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो चुका है। और इसके साथ साथ दरियाई नीलम और झेलम में पानी की जो सतह है ये भी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू हो चुकी है। वादी नीलम की बात करें तो वादी नीलम के जो बालाई इलाके हैं जिसमें गुरेज वैली है, वहाँ पर शदीद बर्फबारी की वजह से जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद हैं। जबकि SDMA की जानब से यह कहा जा रहा है कि चूँकि आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, लिहाजा जो शहरी हैं और जो सयाह हजरात हैं उनको चाहिए कि वो बालाई इलाकों के सफ़र से इजतनाब बरतें। जबकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, जबकि बुलंदोबाला पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और जनाब, लाहौर में बादलों के डेरे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, गर्मी का जोर टूट गया है। हल्की रफ्तार से चलती हवा ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद आबिद, कब तक मौसम का सिलसिला जारी रहेगा ऐसे ही? मौसम ने रंग बदला है और गुज़श्ता 2-3 रोज से जो गर्मी का जोर चल रहा था वो आज टूटता हुआ नजर आया। और इसकी वजह यह है कि आसमान पर इस वक्त सुरमई बादल मौजूद हैं और बूंदाबांदी का सिलसिला भी लाहौर शहर में कहीं कहीं जारी है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आइंदा चंद घंटे इसी किस्म का मौसम रहेगा। गो के तेज बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी आज कमी देखी जा रही है। जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। और आज लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो औसत है वो 188 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि गुज़श्ता 2 से 3 रोज के मुकाबले में काफी कम ख्याल किया जा रहा है। और तवक्को की जा रही है कि अब जैसा कि बूंदाबांदी हो रही है और कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, ये फजाई आलूदगी में मजीद बेहतरी आ सकती है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज तक इसी किस्म का मौसम रहने का इम्कान है। हल्के बादल मौजूद रहेंगे, लेकिन तेज बारिश बरसने का इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। जी। और नाज़रीन, आगे बढ़ते को बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प का साइफर को झूठ कहना कौन सी नई बात है। साइफर इल्जाम किसी भी मयार पर पूरा नहीं उतरता। हुकूमत, अदालत, आजम खान सब साइफर को गलत करार दे चुके हैं। बानी PTI ने झूठ बोलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जेब से जाली खत लहराना सब सियासी रंग था। इंतखाबी धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। PTI ने 25 पिटीशंस दायर की। जो मवाद सामने आया उसे धांधली नहीं बेज़ाब्तगी कहा जा सकता है। ये कौन सी नई बात है? डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट, इस पर गवर्नमेंट कह चुकी है, कोर्ट्स कह चुकी हैं, प्रोनाउंसमेंट आ चुकी है, जुडिशल ऑर्डर्स आ चुके हैं, इस पर स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, इस पर उनके एड की जो उनके अपना आजम खान उनकी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। वो जेब से खत लहराना, जाली सफेद कागज लहराना, वो साइफर है कहाँ पर, ये भी आज तक तो ये एक मुकम्मल तौर पे झूठ था। जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत, जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत, अदालत, हर चीज को खराब किया गया। 25 से ज्यादा इनकी पिटीशंस नहीं है, 25, और मैंने उन 25 पिटीशंस का मटेरियल देखा है। इसको रिगिंग नहीं कहा जा सकता, इसको इर्रेगुलरिटी कहा जा सकता है। और पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार हो चुका है। स्पीकर मलिक अहमद खान सदारत करेंगे और आज भी बजट पर बहस शेड्यूल है। बजट पर 26 मार्च तक बहस जारी रहेगी। जी हाँ नाज़रीन, पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार है। स्पीकर मलिक अहमद खान सदारत करेंगे और आज भी बजट पर बहस शेड्यूल है, जबकि बजट पर 26 मार्च तक बहस जारी रहेगी। इसी पर बात करेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिए, कल भी ताखीर का शिकार था, कम से कम 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ था और आज कब तक शुरू हो जाएगा इजलास? बिल्कुल, पंजाब असम्बली के ऐवान को अपने अरकान का इंतज़ार है। तकरीबन कोई 13 से 14 अरकान सिर्फ अभी तक ऐवान में पहुंचे हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान पहुंच चुके हैं, डेप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक घंटियां बजने का सिलसिला जारी है और इजलास शुरू नहीं हो सका। कल भी 1 घंटा तकरीबन 34 मिनट की ताख़ीर से पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ था और आज भी जो है वो अभी तक जो है इजलास शुरू नहीं हो सका। गो सुबह 9 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया था, यही सोच कर के जुम्मतुल मुबारक है तो
सुबह जल्दी इजलास बुलाया जाए ताकि मैक्सिमम अरकान जो है वो नमाज जुमा तक अपना खिताब कर सकें। हर रुकन को 5 मिनट जो है वो खिताब करने का बजट पर मौका दिया जाता है। और लेकिन इस वक्त जो है कि अरकान की अदम दिलचस्पी कहें या आज जो मौसम खुशगवार हुआ है उसकी बाइस कहें कि अभी तक अरकान जो है वो बहुत सुस्त रवि से ऐवान में पहुँच रहे हैं और तकरीबन 14 अरकान अभी सिर्फ ऐवान में मौजूद हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इस वक्त असेंबली सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। अभी कुछ मालूम नहीं कितने बजे ये इजलास शुरू होगा। बहरहाल बजट पर बहस होनी है और अरकान ने अपने अपने हलकों के अवाम के मसाइल पर बात करनी है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने के मामले पर गवर्नर और हुकूमत के दरमियान तनाज़ा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने गवर्नर के इजलास बुलाने के खत पर महकमा कानून से राय तलब कर ली है। ज़ीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं ग़ुलाम अली, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 3 बजे तलब किया है। ये ख़त जो है असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो चुका है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये ख़त जो है महकमा कानून को अरसाल कर दिया है ताकि मालूम कर सके कि आया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मौजूद होने के साथ साथ वज़ीर आला और काबीना मौजूद होने के साथ गवर्नर इजलास जो है समन कर सकता है या नहीं कर सकता। जो महकमा कानून है उनके मुताबिक उनको शाम के वक्त ख़त्म मौसूल हो चुका है और वो इसकी पेचीदगियों को देख रहे हैं। अगर ज़्यादा पेचीदगियाँ हुई तो वो फिर ये ख़त जो है एडवोकेट जनरल को भेजेंगे और उनसे राय तलब करेंगे। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि 3 बजे गवर्नर का तलब किया गया इजलास जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है और कोई जो है क्लियर नहीं है कि आज इजलास होगा या नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर ने तो इजलास तलब किया है लेकिन हुकूमत जो है इजलास तलब के हामी नहीं है। और यही वजह है कि अब तक ना असेंबली सेक्रेटेरिएट से एलामिया जारी हुआ और ना कोई और इंतजाम हुआ है। एलामिया भी अभी तक जारी नहीं हुआ। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका।